केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्रालय और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तरफ ऊर्जा उत्सव को आपण को शुभेच्छा और स्वागत करुछु। Namaskar. On behalf of Indian Oil Corporation Limited and Ministry of Petroleum and Natural Gas, I cordially welcome all of you to this very special occasion. Today is a red letter day for the state of Orissa, and it is an honor for the Indian Oil family that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is going to dedicate our state-of-the-art 15 MMPTA capacity refinery worth 35,000 crore to the nation. आज का दिन ओडिशा की धरती के लिए स्वर्णिम दिन है। पारादीप की भूमि पर देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी इंडियन ऑयल ने इस आधुनिकतम रिफाइनरी का निर्माण किया है और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इसे राष्ट्र को अर्पित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। Along with the Honorable Prime Minister, we have the privilege to have with us Honorable Governor of Orissa, Dr. S.C. Jamir, Honorable Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Patnaik, our special guest from Sri Lanka, Her Excellency, Dr. Anoma Gamage, Deputy Minister of Petroleum Resources Development, Government of Sri Lanka, our special guest from Bangladesh, His Excellency, Dr. Tawfiq A. Elahi Chaudhary, Advisor to Prime Minister of Bangladesh on Energy, Power and Mineral Resources, Government of Bangladesh, Shri Jewel Ora, Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, Petroleum and Natural Gas, Shri Ranjiv Biswal, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Kulamari Samal, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Shri Devi Prasad Mishra, Honorable Minister for Industries, School and Mass Education, Government of Orissa, Dr. Damodar Raut, Honorable Minister for Cooperation and Excise, Government of Orissa, and MLA Paradeep, Shri K.D. Tripathi, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and the host himself, Shri B. Ashok, Chairman, Indian Oil. प्रथमे ओडिशार राज्य वंदना वंदे उत्कल जननी जार रचयिता होउछन्ते कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, संगीत परिचालना संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास एवं आज एठी संगीत रे संयोजित करिवे लक्ष्मीकांत पालित। आपण माने समस्त जानती ए राज्य संगीत परिवेषण हेला बेले समस्त को दंडायमान हे या को सम्मान प्रदर्शन करिबा पे हे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु भाषमयी जननी 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 वंदे उत्कल जननी भूतपयोधि विधौत शरीर तारकमाल सुशोभित तीर शुभ्रगति निकुल शिखर समीर जननी 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 वंदे उत्कल जननी सुंदर मंदिर मंडित केश चारु कलावणि शोभित वेश पुण्यतीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वंदे उत्कल जननी कविकुल मौळि सुनंदन वन्द्य भुवन विभूषित कीर्ति अनिन्द्य धन्ये पुण्ये चिरशरण्ये जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। Thank you, धन्यवाद Shri Lakshmikant Palit and team for presenting the state song. आमर परंपरा अनुजाई प्रथा अनुजाई मान्यगण्य अतिथि मानक प्रथमे पुष्पस्तबक एवं अंगवस्त्र तथा उत्तरीय प्रदान पूर्वक स्वागत करिवे मान्यवर केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रथमे मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। Now that the dignitaries on the dais, it's time to welcome them in the traditional Odia way. Shri Dharmendra Pradhan ji presenting Angavastra and bouquet to Shri Narendra Modi ji. May I now request Shri
धर्मेंद्र यहाँ प्रधान। पर मान्यवर राज्यपाल ओडिशा डॉक्टर एस.सी. जमीर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी संबर्धित करिबे। आउ थे अनुरोध करूँ मान्यवर मंत्री महोदय को ओडिशार मुख्यमंत्री मान्यवर श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को स्वागत जणाइबे। May I now request Shri Dharmendra Pradhan to kindly present bouquet and uttarya to Her Excellency Dr. Anoma Gamage. श्रीलंका सरकार का पेट्रोलियम संबल विकास उपमंत्री महामहिम डॉक्टर अनोमा गमागे। May I now request Shri Dharmendra Pradhan to kindly present bouquet and uttarya to His Excellency Dr. Taufiq Elahi Chaudhary. बांग्लादेश प्रधानमंत्री को ऊर्जा शक्ति और खनिज संपद परामर्शदाता बांग्लादेश सरकार कर महामहिम डॉक्टर तौफीक इलाही चौधरी वीर विक्रम। Thank you, Shri Dharmendra Pradhan, for doing the honors. May I now request Shri K.D. Tripathi, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, to kindly present bouquet and angavastra to all the dignitaries sitting to the right of the Honorable Prime Minister. श्री के.डी. त्रिपाठी सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्रालय अन्य अतिथि मानू स्वागत संबर्धना जनाउछंती। एवं इंडियन ऑयल अध्यक्ष श्री बी अशोक मध्य संबर्धना ज्ञापन करुछंती मंचासीन अन्य अतिथि मानू। The fragrance of these fresh flowers will always keep the memories of this very special day fresh and remind the dignitaries of this wonderful occasion. एभली एक विशाल तैल विशोधनागार राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग होता बेले जड़े ओडिया युवक केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्रणालय दायित्व में रहिबा आम पई गर्व एवं गौरवर विषय जे निरवच्छिन्न भाव में ऊर्जा उत्सवर तदारक बंदोबस्त एवं आनुषंगिक को अनेक दिन धरी व्यक्तिगत भाव देखि आसुचंती। वर्तमान मान्यवर केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध करिबु से स्वागत भाषण रखिबे। आज उत्सवर मुख्य अतिथि भारत वर्षर लोकप्रिय जननायक कोटि गरीबों आस्थार केंद्र युव हृदयर सम्राट भारतर लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी महाशय मंच उपर उपस्थित थिबा ओडिशार मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर एस.सी. जमीर महाशय ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर नवीन पट्टनायक महाशय पड़ोसी बांग्लादेश प्रधानमंत्री प्रमुख परामर्शदाता डॉक्टर तौफीक इलाही चौधरी महाशय पड़ोसी श्रीलंकार तैल विभाग मंत्री श्रीमती डॉक्टर अनमो गमांगे महाशय तांका संगे तांका स्वामी श्रीलंकार उद्योग मंत्री दया गमांगे यही सभा मंच भीतर उपस्थित अच्छा मंचासीन केंद्रीय आदिवासी विभाग मंत्री मान्यवर जुएल ओराम महाशय राज्य सरकार दुई जन वरिष्ठ मंत्री मु सदाबले कही आसी मोर पितृतुल्य डॉक्टर दामोदर राउत महाशय मोर बड़ भाई राज्यर शिल्प मंत्री देवी प्रसाद मिश्र महाशय दी जन
सांसद स्थानीय लोकसभा सदस्य डॉक्टर कुलमणि सामल महाशय, मोर परम बंधु जगतसिंहपुर जिलार सुपुत्र राज्यसभा सांसद मान्यवर रंजीव विश्वाल महाशय, आम विभाग सेक्रेटरी मान्यवर त्रिपाठी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन चेयरमैन मान्यवर वी अशोक, एटी उपस्थित थिबा राज्य बाहर आसीथिबा आम निमंत्रण बाहर आसीथिबा गण्यमान्य अतिथिवृंद, सांबादिक बंधुगण, राज्य सरकार भारत सरकार वरिष्ठ अधिकारीगण, ओडिशा आसीथिबा हजार हजार भाई भौणी माने आज भाया पवित्र दिवस रे मु आपण समस्त को स्वागत जनाऊची, अभिनंदन जनाऊची ये महत्वपूर्ण उत्सव रे। बंधुगण, पारादीप संगरे ओडिया जातिर ओडिया समाज रा इतिहास जोड़ी है कि अच्छी, स्वाभिमान जोड़ी है कि अच्छी। ये पारादीप रे ये एकविंश शताब्दी रे ये प्रारंभ रे ये महाप्रकल्प आज लोकार्पित हब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मु प्रारंभ रे गोटिया दुईटी तथ्य कही रखा चाहूँ। यह सुखद संजोग गोड़े स्मृति ए भितर जोड़ी है कि अच्छी। जदि राज्य सरकार सहयोग न था, दायित्व न था, भागीदारी न था, ताहले महाप्रकल्प आज रूप नहीं न था। मु धन्यवाद जनाऊँ राज्य सरकार को। सुखद संजोग या आरंभ कर अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत स्वप्न अच्छी ता भितर निश्चित भाव विजु बाबू स्वप्न देखी पारादीप स्वप्न भी देखी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, स्वप्न भी देखी नवकृष्ण चौधरी, स्वप्न भी देखी ओडिया युवक जी दिन यू जाइथिला सात दरिया पार है कि जाइथिला विश्व बाजार व्यवस्था को आनिमा पाई निज पाखु। आज से भाया ओडिशा से भाया ये पवित्र माटी आपको आज लोकार्पण करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी या शुभ देला बेले मान्यवर नवीन बाबू मुख्यमंत्री थिले, मंच उपरे थिले, तांका संगे आउ जने नेता थिले प्रिय जुएल बाबू सेते बेले भी आदिवासी विभाग मंत्री थिले। आज एक सुख मुहूर्त आनंदर मुहूर्त आज वाजपेयी जगह माननीय मोदी अछंती किंतु नवीन बाबू अछंती किंतु जुएल बाबू एटा ओडिया जाति पाई ओडिया समाज पाई एक आनंदर विषय। ये शताब्दी प्रारंभ रे ये एक नुआ कीर्तिमान स्थापन करने पाई जाउछ। बंधुगण, आज उपस्थित अछंती दुईटी पड़ोसी राज्यर मान्यगण्य अतिथि माने, पड़ोसी देशर मान्यगण्य अतिथि माने, श्रीलंकार अतिथि, बांग्लादेश अतिथि। आमे दिने जाइथिले नौ वाणिज्य करबा पाई, बालीजात्रा आम पाई केवल ढग ढमाली नुहे, कथा कहानी नुहे, ये आमर आवेग, ये आमर इमोशन, ये आमर भावना। आज शताब्दीर प्रारंभ रे 66 मसीह 50 वर्ष तले पारादीप बंदर निर्माण है कि लोकार्पित होता ओडिशा पाई। आज 50 वर्ष पर ये एक सौभाग्य आनी, ये एक सुजोग आनी ओडिया को तार हक देवाई, ओडिया युवा को रोजगार देवाई, ओडिया जाति को अर्थनैतिक संपन्नता को नापाई। आज समस्त मिसिकी संकल्प करवा प्रधानमंत्री गरिमामय उपस्थिति, पड़ोसी देशर अधिकारी मानकर मंत्री मानकर गरिमामय उपस्थिति आज ओडिया जाति को एक सौभाग्य आनी दऊ, एक नुआ परंपरा सृष्टि हो, विकास नुआ गंगा बहु, विकास नुआ महानदी बहु। एति कामना करी पुनर्बार मु समस्त को हृदय सहकार कृतज्ञता जन कि ओडिया जाति को आज लोकार्पण करिवे, भारत को आज लोकार्पण करिवे महान प्रकल्प पारादीप तैल विशोधनागार को माननीय प्रधानमंत्री तांको पुनर्बार स्वागत जन कि मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मंत्री श्री प्रधान। यही प्रकल्प साकार होइछि केंद्र सरकार का पुंजी निवेश, ओडिशा सरकार का सक्रिय सहयोग और इंडियन ऑयल अक्लांत परिश्रम जोगु भूमि अधिग्रहण, जल जोगाण और टिकस रिहाती दे पारादीप रिफाइनरी को साकार सहयोग करछंती ओडिशा सरकार।
Thank you very much, Sri Pradhan, for those extremely warm and inspiring words. Time now to hear from the Honorable Chief Minister, Government of Odisha. May I now request Sri Naveen Patnaik ji to kindly address the gathering, please. अनुरोध करुछु मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को से तांका वक्तव्य रखिबा पाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर S.C. जमील, माननीय केंद्र मंत्री श्री जुएल ओराम, माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, एक्सेलेंसी डॉक्टर अनोवा गमांग, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम Sri Lanka, His Excellency Dr. Tafiq Ali Chaudhry, Advisor to the Prime Minister of Bangladesh, Manyabhar Mantri Dr. Damodar Rao, Manyabhar Mantri Sri Devi Prasad Mishra, Manyabhar Sansad Dr. Kulmani Samal, माननीय सांसद श्री रंजीव बिस्वाल, चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन श्री B. अशोक, सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री त्रिपाठी एवं बंधुगण, आज आम समस्त को एक आनंदर दिन। आज पारादीप ऑयल रिफाइनरी उद्घाटित है। खुशीर कथा आज यही कार्यक्रम रे जोग देवाई भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एठारे उपस्थित अछंती। मु तांकु उड़ीसा को स्वागत करुछि, आउरी मध्य स्वागत करुछि आपको मोर प्रिय भाई और भौणी मानू जो माने बहु संख्या रे जोग दे यही सभा को सफल करिसंती। 1999 रो महाबात्या परे 2000 रे आम सरकार दायित्व नहीं थिला। महाबात्या रे सबुथरु बेसी क्षति सहित पारादीप और जगत सिंहपुर जिला 2000 में मसरे भारत रो प्राइम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यही रिफाइनरी रो फाउंडेशन रखी थे। बात्या दुर्गत लोगों को भरोसा और विश्वास फेराई आनिबा पाई यही रिफाइनरी सेते बेले आशार आलोक थिला। पारादीप आसिले बीजू बाबू को स्मृति मन को आसी थाए। सबु एडवर्स सिचुएशन को सफल भाव रे मुकाबला करे बीजू बाबू पारादीप बंदर प्रतिष्ठा करी थिले। पारादीप थिला ओडिशा रो विकास धारा रे सबुथरु बड़ो परिचय। आज पारादीप देश रो एक बड़ो बंदर और शिल्प नगरी होई पारिछि। मोर विश्वास आगामी दिनों रे पारादीप पूर्व भारत रे इंडस्ट्रियल कैपिटल एबाकू जाउछि। 1990 रे सेकंड टाइम पाए मुख्यमंत्री हेबा परे आम प्रिय नेता बीजू बाबू पारादीप ऑयल रिफाइनरी पाए उद्यम आरंभ करिथिले। बीजू बाबू को कंटिन्यूअस एफर्ट द्वारा अक्टोबर 31
1994 रे भारत सरकार 6 मिलियन टन रो ऑयल रिफाइनरी पाए निष्पत्ति नहीं थिला। शेष रे 2000 रे यही प्रोजेक्ट रो फाउंडेशन दिया गला। बीजू बाबू थिले उड़ीसा रो शिल्प विकास रो जनक। पारादीप ठारू राउरकेला और सोनाबेड़ा रु बड़बेल सबु आदे शिल्प विकास रो एक नूतन जुग से आरंभ करिथिले। चलित वर्ष आमे सही महान नेता बीजू बाबू करो बर्थ सेंटेनरी पालन करबाकू जाउछु। पारादीप रे तांको उद्यम रे आरंभ होइथिबा एही बेरात ऑयल रिफाइनरी बर्थ सेंटेनरी अवसर रे बीजू बाबू को प्रति ओडिया जातिर भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि। सबु बड़ो बड़ो प्रोजेक्ट गढ़िबारे साधारण लोकर अवदान सबुठारु बेसी थाए। यही रिफाइनरी प्रोजेक्ट पाए बहु लोक से मानको जमी हराई छंती। राज्यर स्वार्थ पाए से मानको त्याग को मुझे मान जनाउछि। पारादीप रो यही ऑयल रिफाइनरी पाए राज्य सरकार 3,300 एकड़ को अधिक जमी प्रतिदिन 25 मिलियन गैलन जल और सब प्रकार सुविधा जोगाई देउछंती। वर्तमान सुधा उड़ीसावासी यही प्रोजेक्ट पाए एंट्री टैक्स और वैट एवं अन्य टैक्स पाए 1 लाख कोटी रु अधिक टंका त्याग करिछंती। किंतु उड़ीसा रे शिल्प विकास और निजुक्ति सुजोग सृष्टि पाए राज्य सरकार यही प्रोजेक्ट को सबु सहयोग जोगाई आसीछंती। यही प्रोजेक्ट रो प्रति पिलर उड़ीसा बासिंकर त्याग और स्ट्रॉन्ग विल पावर जयगान करुछि। विकास आज उड़ीसा बासिंकर जीवन धारा हो जाए। शिल्प कृषि भित्तिभूमि सबु क्षेत्र रे सफलतार सह ओडिशा आज आगाई चली। गत 2 वर्ष मध्य 7 लाख रु अधिक पक्का घर हो पारी। आगामी 3 वर्ष मध्य राज्यर सबु कच्चा घर को पक्का घर करबा पाए आमे काम करुछु। समाज कल्याण क्षेत्र रे मध्य ओडिशा एक मॉडल राज्य हो पारी। आदिवासी और दलित छात्र छात्री को मध्य रे शिक्षा रो प्रसार बढ़ी। राज्यर सबु ब्लॉक रे मॉडल स्कूल करा जाउची। 10 लाख हेक्टर अधिक जमी रे जलसेचन सुविधा सृष्टि पाए काम चली। मरुड़ी अंचल जलसेचन सुविधा उपरे स्वतंत्र गुरुत्व दिया जाए। गाँ आज विकास रो केंद्र होई। देश रो विकास यात्रा रे ओडिशा आज सफल भाव रे शामिल हो पारी। I congratulate IOCL for setting up the state-of-the-art refinery here in Paradip. This project will go a long way in revolutionizing the entire region's energy scenario. Further, for the development of the proposed petroleum chemical and petrochemical investment region, a cracker complex by IOCL is essential. IOCL has announced 4 projects in 2014. It is understood
The work on one project has commenced. IOCL should also start work on the other 3 projects. Respected Pradhan Mantri Ji, this complex has the potential to create 3 lakh jobs and substantial value addition for revenue generation, and this region will be one of the brightest spots in our Make in India dream. Hence, I would sincerely request you to insist upon ICL to fulfill its commitments in facilitating downstream and ancillary industries and creation for jobs for our youth. Odisha has been categorized as an aspiring leader in the ease of doing business. We have an industrial policy which is very progressive, and a number of investments are coming to the state. The people of Odisha will be grateful if the proposed Chennai-Vizag industrial corridor is extended up to Odisha. Respected Pradhan Mantri Ji, you will be happy to know that Odisha has been doing very well in improving agricultural production and has received the Krushi Karmana Award at the national level for the 4th time in 5 years. We have focused on irrigation in a major way, especially in our historically drought-prone areas. The next 3 years will see a substantial reduction of the drought-prone areas of our state. Odisha leads the country in rural housing, having constructed more than 7 lakh houses in the last 2 years. We are proud that Bhubaneswar has been selected as the #1 smart city in the country. As you can see, Odisha has been doing very well in all fronts. I am sure with your support, Odisha will fast-track its growth and move toward an empowered Odisha. One of the main challenges which often derails our growth is our frequent exposure to natural calamities. Almost every alternate year, our state faces a serious natural calamity. In this context, I sincerely respect Pradhan Mantri Ji to confer special category status for Odisha so that we further fast-track our growth momentum. On behalf of the people of Odisha, I thank the Honorable Prime Minister for the increased allocations in the railway budget last year after historical neglect of many years. We hope this trend will continue. I would also like to express my gratitude for the amendments made in the MMDR Act for the development of mining areas. I once again thank the Honorable Prime Minister for visiting Odisha and dedicating this dream project to the people of our country. Odisha ବାସୀଙ୍କର ଏହି ଖୁସିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି जी ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନମସ୍କାର। Thank you to the Honorable Chief Minister for sharing with us his thoughtful insights. This historic refinery project could not have completed successfully without the support of the state government. Thank you. कौन यही पारादीप रिफाइनरी केते बड़ ये रिफाइनरी केते विशाल कौन तैयारी हेबो ये रिफाइनरी रे आसंतु देखिबा पारादीप रिफाइनरी उपरे एक प्रामाणिक चित्र। Do you know that the Paradip refinery has set up Indian Oil's largest captive power plant of 366 MW capacity? Or that the coke chamber of the delayed coker unit are the world's largest? You will find more such interesting information
on Paradip Refinery in the film that is coming up next. Let's have a look at the film. देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी बनाने के लिए क्या चाहिए? 30 एफिल टावर या 350 राजधानी ट्रेन बनाने के बराबर स्टील, या गंगा नदी की लंबाई के बराबर पाइपलाइन नेटवर्क? दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी 3 बिल्डिंग्स बन जाएं, इतना आरसीसी और पीसीसी, इतने ही विशाल स्रोत और सर्वोच्च टेक्नोलॉजी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित करने जा रहे हैं देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी उड़ीसा में, पारादीप रिफाइनरी। इंडियन ऑयल देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता में 31% का योगदान दे रहा है। अब इस स्टेट ऑफ आर्ट रिफाइनरी के साथ इंडियन ऑयल अपनी क्षमता में 15 MMTPA की विशाल बढ़ोतरी करने जा रहा है, जिससे कंपनी की कुल क्षमता 80 MMTPA से भी अधिक हो जाएगी। पारादीप रिफाइनरी 34,555 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इंडियन ऑयल का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। पारादीप में इंडियन ऑयल के अब तक के सबसे बड़े कैप्टिव पावर प्लांट का भी निर्माण किया गया है। इस रिफाइनरी द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि LPG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन, प्रोपिलीन, सल्फर एवं पेट्रोलियम कोक का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। रसोई गैस का अधिक उत्पादन करने के लिए 4.1 MMTPA कैपेसिटी वाले इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट का भी किया गया है निर्माण। पारादीप रिफाइनरी के अंदर पॉलीप्रोपिलीन यूनिट शुरू होने वाला है, जो इस पूरे क्षेत्र को पेट्रोकेमिकल हब के तौर पर विकसित करेगा। इसके अलावा पारादीप रिफाइनरी ने MEG, पेट कोक गैसिफिकेशन और डाउनस्ट्रीम एवं सिंथेटिक एथेनॉल प्रोडक्शन का बड़ा लक्ष्य भी रखा है। इंडियन ऑयल अन्य हाइड्रोकार्बन सेक्टर के साथ मिलकर उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करने जा रही है। पारादीप रिफाइनरी के आगमन से विभिन्न पेट्रोकेमिकल्स तथा डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में आएंगी और इस क्षेत्र को विकास की एक दिशा में ले जाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बहुत बड़ा बल। किसने कहा पूरब से, तो सिर्फ सूरज निकलता है और किरणें अंदर आती हैं। पूरब से तो एक बहुत बड़ा द्वार भी निकलता है, जहां से दुनिया भारत में आती है। पारादीप रिफाइनरी, द एनर्जी गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे देश को समर्पित। The film says it ଆପଣମାନେ- all. Thank you for this very inspiring film. आपण माने देखुथिले এই प्रामाणिक चित्र जो मुहूर्त को आमे अपेक्षा करथिले, वर्तमान सही मुहूर्त उपस्थित पूर्व भारतर शक्ति क्षेत्र प्रवेश पथ पारादीप रिफाइनरी को एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जातीय उद्देश्य उत्सर्ग करी लोकार्पित करिबे। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly unveil the plaque to mark the dedication of the Paradip Refinery to the nation. Ladies and gentlemen, the energy gateway of the Eastern India has been dedicated to the nation. This marks the beginning of a new era of opportunities, progress and prosperity. देश की ऊर्जा इंडियन ऑयल और प्रकाश पुंज सूर्यदेव की धरती ओडिशा के सम्मेलन का प्रतीक ये आधुनिक मंदिर पारादीप रिफाइनरी देश को समर्पित हो चुकी है। सदियों से पारादीप विश्व के व्यापार विस्तार का प्रमुख स्तंभ रहा है। इंडियन ऑयल की 15 मैट्रिक टन रिफाइनरी की स्थापना से यश और समृद्धि की ये ऐतिहासिक श्रृंखला और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानव सम्मान श्री मेक इन इंडिया इंडियन मैक्सिमाइजेशन यूनिट सबुठारु अधिक रंधन गैस उत्पादक हम। मेक इन इंडिया इंडमैक्स हम वैषयिक सफलतार सफल रूपायन। माननीय प्रधानमंत्री डाहाण पटे मेक इन इंडिया स्मारकी को वर्तमान उन्मोचन करिसेंती। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्रणालय
आर्थिक अनग्रसर महिला मानक निमंते आरंभ करिछि फेराई दियो योजना। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर अवदान एई फेराई दियो योजना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य भारत को विश्व में उत्पादन, तकनीक और नवरचना का श्रेष्ठ केंद्र बनाना था। 3 जन महिला हिताधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करिवे एलपीजी सिलिंडर। प्रथमे श्रीमती खुलना महांती, परवर्ती प्रतिनिधि हिताधिकारी श्रीमती संयुक्ता बेहरा। एलपीजी सिलिंडर माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करुछंती। तृतीय श्रीमती भारती बेहरा। Shri Narendra Modi ji distributing LPG connections coming from IOCL, BPCL and HPCL to some rural householders. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वबद्धता अंतर्गत 5टी उच्च चिकित्सा उपकरण और वैषयिक क्षमता संपन्न एम्बुलेंस ओडिशार लोकंक सेवा पई अर्पित करिवे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री याको ग्रहण करिवे। 5टी एम्बुलेंस। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly present the key of the ambulance to the Honorable Chief Minister Odisha Shri Naveen Patnaik ji. प्रधानमंत्री भिन्नक्षम मानक नामकरण करिसेंते दिव्यांग हिसाब रे। दिव्यांग मानक पई वर्तमान सहायक यांत्रिक उपकरण प्रदान। May I now request Shri Narendra Modi ji to kindly present support equipment to 3 specially abled children. प्रथम 8 वर्षर सुश्री पिंकी परमाणिक शरीरर स्वतः परिचालना वृद्धि, स्वावलंबन, हस्त और चक्षु मध्य समन्वय, सचेतनता वृद्धि निमंते MSID किट प्रदान करुछंती माननीय प्रधानमंत्री। This kit helps and develops body reflexes, hand-eye coordination response, alertness and awareness. परवर्ती हिताधिकारी 20 वर्षीय सुश्री नंदिनी स्वाई श्रवण जंत्र शब्दर ध्वनि को वृद्धि करी श्रवण शक्ति रहित व्यक्तित्व को शुणिबार क्षमता दिए। ए हियरिंग किट। It is an electro-acoustic device designed to amplify sound to rectify impaired hearing. परवर्ती हिताधिकारी होचंती 18 वर्षीय संतोष कुमार राउत प्रकाशित विषय वस्तु को ध्वनि रे रूपांतरित करी जने दृष्टिहीन दिव्यांगों को कार्यक्षम कराई पारे डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी प्लेयर। It is a complete audio substitute of print material for the people with impaired vision. Thank you to the Honorable Prime Minister for doing the honors. A very special CSR project by Indian Oil Company. शेष दिव्यांग संतोष कुमार राउत तांको डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रदान करछंती माननीय प्रधानमंत्री। We are undertaking this CSR initiative for supporting AMILCO in providing assistive aid and appliances to poor and needy persons with disabilities. Thank you, Shri Narendra Modi ji, for doing the honors. अनेक सफल स्वप्नर रूपायक आरब सागर ठारू बंगोपसागर पर्यंत जहांक प्रगतिशील स्वप्न और परिश्रम एक विकासशील भारतवर्षर आकांक्षा रखे, जहांक बाणी और वक्तव्य प्रति भारतीयों हृदय को छुई जाए, से आम समस्तंकर अति प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण करुछु तांका वक्तव्य रखिवा पाई। जोरदार करताली सहित स्वागत करंतु, जेमिति कि ओडिशा सम्मान देबारे केबे पछे नाही। May I now request Shri Narendra Modi ji to kindly honor us with his address.
जय जगन्नाथ। ओडिशार भाई भावणी मानको मोर नमस्कार। सूर्य मंदिर अर्क क्षेत्र कोणार्कर माटी को मोरो प्रणाम। महाप्रभु श्री जगन्नाथम को मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर जमीर जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान जुएल ओराव जी, इसी विभाग के मंत्री मेरे युवा साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, बांग्लादेश प्रधानमंत्री के सलाहकार श्रीमान डॉक्टर तौफीक इलाही चौधरी, श्रीलंका सरकार के पेट्रोलियम संसाधन विकास उपमंत्री डॉक्टर अनोमा गमागे, ओडिशा सरकार के मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत, श्री देवी प्रसाद मिश्रा, संसद में मेरे साथी डॉक्टर कुलमणि समल जी, श्रीमान रंजीव बिस्वाल जी, केंद्र सरकार के सचिव श्री केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीमान बी अशोक जी और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सरकारी कार्यक्रम तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। मेरी जहां भी नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं। ये इस बात का सबूत है कि उड़ीसा का हर नागरिक जानता है इस पारादीप रिफाइनरी का उनके जीवन में कितना महत्व है, ओडिशा के विकास के लिए कितना महत्व है, वो हर ओडिशा का नागरिक जानता है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में विकास के इस काम में भागीदार बनने के लिए हमारे बीच आए हैं। ओडिशा ये उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, सुरेंद्र साई जी एवं महाराज के कृष्णचंद्री गजपति जैसे महान महापुरुषों को, आत्माओं को मैं नमन करता हूं। सैकड़ों सालों तक ओडिया व्यवसायी साधव समुद्री रास्ते से दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के विभिन्न स्थानों जैसे जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो, कहां-कहां पहुंचते थे उड़ीसा के व्यापारी। इसकी याद में
हर साल आज भी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश के कोने कोने में बोईत वंदना की जाती है। पारंपरिक रूप से यहां के मंदिरगा विश्व के अन्य भागों से व्यापार के लिए बहुत ही वाइब्रेंट हुआ करते थे। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम काव्य में कलिंग के राजा को महोदधीपति एंड लॉर्ड ऑफ द सी इस रूप में वर्णन किया है। मैं इस पारादीप जगतपुर सिंह जिले की माटी को भी पावन क्षेत्र मानता हूं। यही धरती है जहां शूद्र मुनि सारला दास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की और यह संस्कृत के अलावा किसी भी भारतीय भाषा में सबसे पहली लिखी गई महाभारत थी। अत्यधिक विनम्रता के साथ मैं आज उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब और उत्कल के महान पुत्र श्री बिजू बाबू को याद करना चाहता हूं। यही तो महापुरुष थे जिन्होंने पारादीप को बचाने के लिए बंदरगाह की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। इस जगतसिंहपुर जिले की मिट्टी में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नवकृष्ण चौधरी, स्वातंत्र सेनानी गोपबंधु जी, मां रमा देवी जी, मालती देवी जी और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको याद करके मैं सर झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई हिंदुस्तान की रिफाइनरियों में सिरमौर एक रिफाइनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। और खुशी की बात यह है कि इसका शिलान्यास हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जिस काम को वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, उस काम को परिपूर्ण करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा जीवन का और आनंद क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, ये ऐसी योजना है जिसके कारण यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और इसलिए ये पारादीप रिफाइनरी एक प्रकार से उड़ीसा का विकास द्वीप है, विकास द्वीप। ये पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा के नौजवानों का भाग्यदीप है, भाग्यदीप। ये पारादीप रिफाइनरी हिंदुस्तान की कोटि कोटि गरीब महिलाएं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं, धुएं के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार हो जाती है,
ऐसी गरीब माताओं को एक नई आशा जगाने वाली आप पारादीप रिफाइनरी है, जहां से गैस सिलेंडर गरीब के घर तक पहुंचने वाले हैं। सरकार जब काम करती है तो किस तेजी से कर सकती है, इसका उदाहरण आपने देखा है। हमारे देश के कई प्रोजेक्ट 40-50 साल किसी को विचार आए, 10 साल के बाद कागज पे उतरे और 5-10 साल बीत जाए, योजना बनते बनते फिर शिलान्यास हो और उसको पूरा करते करते तो पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। आजकल मैं कहीं किसी योजना का उद्घाटन करने जाता हूं तो खास करके हमारे कांग्रेस के मित्र तुरंत बयान देते हैं कि ये तो हमारे जमाने में शुरू हुआ था। भाइयों बहनों, अगर मेरे हाथ से किसी योजना का उद्घाटन करने का अवसर मिले, मुझे आनंद हो, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे आनंद नहीं होता है। मुझे तो आनंद तब होता कि ये काम अगर 15 साल पहले पूरा हो गया होता, यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिला हो। हमारे यहां योजनाओं को रुकावटें, विलंब, कभी कोर्ट कचहरी, कभी टेंडर प्रक्रिया, कभी जन आंदोलन, न जाने ऐसी ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है कि हमारी योजनाएं बहुत महंगी हो जाती हैं। देश के अंदर प्रगति करने के लिए देशवासियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, उद्योग जगत ने, सामान्य नागरिकों ने, नीति निर्धारकों ने एक ऐसे कल्चर को जन्म देने की जरूरत है कि जहां योजनाएं समय पर शुरू हो, निर्धारित समय से आगे बढ़े और निर्धारित समय में पूर्ण हो, ताकि देश को उसका लाभ मिले, समय से पहले लाभ मिले। भाइयों बहनों, हम वो वर्क कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी विलंब के कारण देश को गंभीर नुकसान न हो। भाइयों बहनों, इस रिफाइनरी में 78 करोड़ केजी एलपीजी का निर्माण होने वाला है। 500 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन होने वाला है। 660 करोड़ लीटर डीजल का उत्पादन होने वाला है। केरोसिन और एटीएफ मिलाकर के 250 करोड़ लीटर का उत्पादन होने वाला है। 27 लाख क्विंटल सल्फर का उत्पादन होने वाला है। 120 लाख टन, 120 लाख क्विंटल पेट्रोलियम कोक निर्माण होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सारे उत्पादनों के कारण देश के आर्थिक विकास में कितनी बड़ी गति आएगी। हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर उड़ीसा की धरती से कोई समय था भारत की पहली सूरज की किरण यहां आती थी
अब भारत को नई ऊर्जा यहां से प्राप्त होने वाली है। ये ताकत पारादीप ने दिखाई। भाइयों बहनों, इसके कारण लाखों नए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई है। इसमें से वो रॉ मटेरियल तैयार होगा, उस रॉ मटेरियल के कारण छोटे छोटे प्लास्टिक के अनेक उद्योग लग सकते हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के द्वारा पैसे दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए नौजवानों को नए आविष्कार करके काम करने के लिए सरकार सहूलियत दे रही है। पारादीप रिफाइनरी, इसके साथ एक विकास की पूरी लंबी यात्रा चलने वाली है, जो उड़ीसा के भाग्य बदलने का काम करने वाली है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में लाखों गरीब परिवार, करोड़ों गरीब परिवार, उनको खाना पकाना है तो लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता है। और लकड़ी के चूल्हे को जलने से वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 घंटा अगर उस चूल्हे के धुएं में कोई रहता है तो 400 सिगरेट पीने जितना धुआं उनके शरीर में चला जाता है। उन गरीब मां बहनों की हेल्थ का क्या होता होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होता होगा। हमारी कोशिश है कि इन गरीब माताओं के पास एलपीजी का गैस सिलेंडर पहुंचे, वो लकड़ी के चूल्हे से, धुएं से मुक्ति पाए। और ये पारादीप रिफाइनरी में इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का निर्माण होने वाला है कि वो संभव होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को यूरिया चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए यूरिया चाहिए। यूरिया के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें एक जरूरत होती है गैस की। अगर पूरी मात्रा में गैस उपलब्ध हो तो यूरिया का उत्पादन बढ़ता है, हमारे देश के किसान को समय पर यूरिया पहुंच सकता है। और इसलिए हम इसी पारादीप योजना के तहत आने वाले दिनों में पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के लिए फर्टिलाइजर के कारखानों को आरंभ करना चाहते हैं, ताकि इस इलाके के किसानों को आवश्यक मात्रा में यूरिया मिले। हमारे देश में आने वाले दिनों में ऊर्जा के इन क्षेत्रों में किसानों की भलाई के लिए हमने एक और योजना बताई है। ये बात सही है कि रिफाइनरी की जरूरत है, रिफाइनरियां बढ़नी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशों से हमें जो तेल आयात करना पड़ रहा है उसमें कमी कैसे लाएं। मैंने सरकार के अधिकारियों की एक दिन मीटिंग की। मैंने उनसे कहा, जब देश आजाद हो के 75 साल मनाएगा, 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैंने क्या आजादी के जब 75 साल हम मनाएंगे तब आप ये जो विदेशों से हमें ऑयल लाना पड़ता है उसमें 10% कमी कर सकते हो क्या। मैंने उनके नाम चुनौती रखी है और मुझे विश्वास है कि हमारी ऑयल कंपनियां, हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा करके भारत को आत्मनिर्भर दिशा बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाएंगे। अभी जो हमारा ऑयल आता है वो ज्यादातर खाड़ी के देशों से आता है, लेकिन हमारा सपना है खाड़ी का भी तेल हो, झाड़ी का भी तेल हो।
खाड़ी का तेल और झाड़ी का तेल उसको हमने मिलाना है। और इसलिए हमने कहा है कि हमारे देश के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं और उस गन्ने के रस में से इथेनॉल बन सकता है। जितनी चीनी की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, उतनी शुगर बनाएं और जो अतिरिक्त शुगर कैन है उससे इथेनॉल बनाएं और ये इथेनॉल का हमारे पेट्रोलियम पैदावारों के बीच मिक्स करें ताकि हमारी गाड़ियां भी तेज चलें और पर्यावरण की भी रक्षा हो। और देश में बहुत बड़ी मात्रा में ये झाड़ी का तेल, इथेनॉल, शुगर कैन से निकलने वाला प्रोसेस करके बनाया गया। उसी प्रकार के मेरे छत्तीसगढ़ के किसान आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में जट्रोफा की खेती करते हैं। हमारे पड़ोस में है उड़ीसा के, जट्रोफा से भी जो तेल निकाला जाता है वो तेल भी हमारी पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता में जुड़ सकता है। हम झाड़ी के तेल की तरफ भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी पर बल दे रहे हैं ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, दुनिया पर किसी से पर हमें आश्रित न रहना पड़े। ये पारादीप रिफाइनरी उस काम को बल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के द्वारा उठाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसी भी किसान परिवार को पूछोगे, 100 एकड़ भूमि होगी, उसके बाद भी अगर किसान को पूछोगे कि आपके 3 बेटे हैं, क्या सोच रहे हो, बेटों को आगे कहां ले जाना चाहते हो, तो किसान बाप कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटे उनको तो सही शहर में भेज दूंगा, वो अपना रोजी रोटी कमा लेंगे, वहां कहीं नौकरी धंधा कर लेंगे। यानी किसान भी अपने 3 बेटों को अब खेती में लगाना नहीं चाहता है। किसान भी अपने एक बेटे को खेती दे करके 2 बेटों को किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है। ये दूसरा काम किसान के बेटे को कब मिलेगा? क्या किसान का बेटा बेरोजगार रहे? क्या किसान का बेटा कर्जदार बनता चले? अगर हमारे गांव के किसान के बेटे को भी रोजगार देना है तो हमारे देश में हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अगर ये पारादीप रिफाइनरी न बनती, ये 3000 एकड़ भूमि अगर इस काम के लिए न लगाई गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते। पूरे ओडिशा के भाग्यों बदलने में हमें ये जमीन काम न आती। ये पारादीप रिफाइनरी है जिसके कारण वो जमीन आज हिंदुस्तान के गरीब किसान के बेटे को रोजगार देने का कारण बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान जवान है। दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने जवान होते हैं, उस देश के सपने भी जवान होते हैं, उस देश के इरादे भी जवान होते हैं, उस देश के संकल्प भी जवान होते हैं, और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी लगती है। वो जवान ताकत होती है जो भारत के भाग्य को बदलती है। और इसलिए
हमने मुद्रा योजना के द्वारा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर मिले। हम नहीं चाहते कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर बने, जॉब पाने के लिए बेचारा इधर उधर भटकता रहे। हम चाहते हैं ऐसा माहौल कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, एक को, दो को, पांच को रोजगार दे, ऐसा नौजवान को ताकत मिले। और इसलिए मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आज नौजवानों को देने की दिशा में हमने काम उठाया है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों हमने दिया है। इतने कम समय में देश के सामान्य परिवार के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना में मिलना ये छोटी बात नहीं है। मुझे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि पूरे उड़ीसा में पिछले 60 साल में 26 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 60 साल में 26 लाख। धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बनने के बाद 1 साल के भीतर भीतर 11 लाख गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर अकेले उड़ीसा में पहुंचा दिया। काम तेज गति से कैसे होता है, इसका यह उदाहरण है। 60 साल में 26 लाख, 1 साल में 11 लाख, ये काम किया जाता है। ये काम ये सरकार कर रही है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो। अब तक हमारे देश के अर्थकारण की पंडित लोग चर्चा करते हैं तो 2 बातें हमेशा कहते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो लिखते हैं वो कहते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। मैं एक तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। इकोनॉमी में अगर पब्लिक सेक्टर का महत्व है, प्राइवेट सेक्टर का महत्व है, तो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र को बल देने की जरूरत है, वो है पर्सनल सेक्टर। एक एक इंडिविजुअल ये स्वयं बलबूते पर खड़ा होकर के आगे बढ़े। और इसलिए एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना, एक एक परिवार को आगे बढ़ाना, उस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बल देकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मुझे हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आज विशेष रूप से बधाई देनी है। और वो बधाई है, पारादीप रिफाइनरी ने मेक इन इंडिया का एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया है। इस क्षेत्र में दुनिया के कई देश आगे हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इंडीमैक्स की जो योजना की और रॉ मटेरियल में से प्रोसेस करने की टेक्निक में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत में बना हुआ, भारत के टेक्नीशियनों द्वारा निर्मित किया गया प्रोजेक्ट आज पारादीप में लगा है। दुनिया के लोगों को अचरज हो रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में आउटकम देने वाला, इतनी तेज गति से आउटकम देने वाला, इतना परफेक्ट प्रोसेस करने वाला, इतना बारीकी से हर एलिमेंट का डिवीजन करने वाला, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पूरे विश्व के टेक्नीशियन वैज्ञानिकों के लिए भारत ने अचंभे में डाल दिया है। और ये काम ये पारादीप रिफाइनरी में हो रहा है, पूरी तरह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और उसके कारण एलपीजी के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हमारी इकोनॉमी को कम खर्चे में ज्यादा बल देने का कारण बनने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, वे सभी वैज्ञानिक, वे सभी टेक्नीशियन भी इस बात के लिए अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं
मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनकी पूरी टीम को इस काम को तेज गति से आगे बढ़ा करके 18 महीने के भीतर भीतर पूर्णता पर पहुंचाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये पारादीप ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ है जो विकास की नई संभावनाओं को लेकर के आया है। सदियों पहले उड़ीसा स्वर्णिम युग का कालखंड रहा है। ये पारादीप के बाद उड़ीसा में फिर से एक बार उज्जवल भविष्य का कालखंड प्रारंभ हो रहा है और भारत सरकार इस काम के लिए जितना करना होगा कभी पीछे नहीं हटेगी। भारत सरकार की पूरी मदद रहेगी, क्योंकि उड़ीसा के नौजवान हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए और अवसर उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Thank you to the ताली Honorable Prime तालीर Minister. गुंजरण शुभु माननीय प्रधानमंत्री जो बड़ी भाव से ओडिशा पई स्वप्न देखिचंती एवं आपण मानक सम्मुख रे रखिचंती। गोटे Thank you. जोरदार ताली प्रधानमंत्री आउ थरे। Recall these words of wisdom that only comes with decades of experience, expertise, and the vision to see India shine and grow as the next superpower of the world. Thank you so much, the Honorable Prime Minister. वर्तमान इंडियन ऑयल तरफरु ए विशेष ऊर्जा उत्सवर प्रेम र स्मारकी भल पाइबार स्मारकी मान्यगण्य अतिथि मानक प्रदान कराजिबो। आमे वर्तमान अनुरोध जणाउछु मान्यवर आदिवासी व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महोदय को जे मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उपहार प्रदान करिवे। Honorable Union Minister, Tribal Affairs, Shri Juel Oram, presenting a small token of love and gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And what can be a better souvenir than the miniature of Paradeep Refinery that will always remind the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, of this wonderful day and his presence. यहाँ परे श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को अनुरोध करुछु जे ओडिशार माननीय राज्यपाल डॉक्टर एस.सी. जमीर महोदय को संबर्धित करिवे। Shri Dharmendra Pradhan ji, presenting a small token of love to Honorable Governor of Odisha, Dr. S.C. Jamir. पारादीप रिफाइनरी एक क्षुद्र प्रतिरूप ए स्मारकी। May I now request Chairman Indian Oil, Shri B. Ashok, to kindly present memento to Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik. इंडियन ऑयल अध्यक्ष श्री बी अशोक वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को स्मारकी प्रदान करछंती। May I now request Shri Juel Oram to kindly present token of appreciation to His Excellency Dr. Tawfiq Elahi Chaudhary. श्री जुएल ओराम महोदय को अनुरोध करुछु बांग्लादेश प्रधानमंत्री को ऊर्जा शक्ति और खनिज संबल परामर्शदाता महामहिमा डॉक्टर तौफीक इलाही चौधरी वीर विक्रम को संबर्धित करछंती। May I now once again request Shri Dharmendra Pradhan ji to kindly present small token of appreciation to Her Excellency Dr. Anoma Gamage. These are श्रीलंका small. सरकार कर पेट्रोलियम संबल विकास उपमंत्री डॉक्टर अनोमा गमागे। Thank you to the dignitaries for doing the honors. Time now for the formal vote of thanks. And may I now request Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shri Juel Oram, to kindly propose vote of thanks, please. केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महोदय को अनुरोध करुछु से आनुष्ठानिक भावे धन्यवाद अर्पण करिवे। जय जगन्नाथ। मो सर्वप्रथमे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद दूची
आपण मानकर समस्तंकर तरफरु जे से बहुमूल्य समय बाहर करिकरी ओडिशार गर्व गौरव ये विराट अनुष्ठान पारादीप रिफाइनरी को देश उद्देश्य रे समर्पण करने बोलिक समय देकर आसिले मु तांको धन्यवाद अर्पण करुछि। मु आज ये धन्यवाद देवा कड़ी रे महामहिम राज्यपाल डॉक्टर एससी जमीर को मध्य मु धन्यवाद दूछि। से तांकर बहुमूल्य समय बाहर करिकरी परिश्रम करिकरी ये सभारे उपस्थित रहिकरी आमर गौरव एवं गरिमा बढ़ाई। मु आजिकार अन्यतम अतिथि माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद दूछि जे से एठी उपस्थित रहिकरी आपण मानकु मार्गदर्शन कले एवं ए कारखाना तैयारी रे तांकर भरपूर योगदान थिबारु ओडिशा सरकारंकर भरपूर योगदान थिबारु मु मध्य तांको धन्यवाद अर्पण करुछि। मु एठी उपस्थित थिबा डॉक्टर चौधरी जे कि बांग्लादेश रो प्रतिनिधि एडवाइजर टू पीएम से आसिकरी एठी गौरव बढ़ेले एवं तांकर सदैव उपस्थिति देइकरी आमको एनकरेज कले सेथिपई तांको मध्य मु धन्यवाद दूछि। मु श्रीलंकार राष्ट्र मंत्री तैल विभाग डॉक्टर अनुमा तांको मध्य धन्यवाद दूछि जे से सदैव उपस्थित रहिकरी आमर एठी गौरव बढ़ेले एवं आजिर सभा को बढ़ेले। आज आमर एठी डॉक्टर दामोदर राउत आमर बड़ भाई वरिष्ठ मंत्री वरिष्ठ राजनीतिज्ञ से एठिकार विधायक से मध्य एठी उपस्थित रहिकरी आमर सभा को शोभा बढ़ेले मु तांको मध्य धन्यवाद दूछि। भाई देवी मिश्र मोर बंधु एवं ओडिशा सरकार शिल्प मंत्री से मध्य उपस्थित रहिकरी आपण सभा को गौरव बढ़ेले सेठिपई तांको मध्य मु धन्यवाद दूछि। दुई सांसद आमर कुड़मणि सामल डॉक्टर कुड़मणि सामल लोकसभा सांसद एवं राज्यसभा सांसद रंजीव विश्वाल से मध्य एठी उपस्थित रहिकरी आपणकर लोकों को उत्साह वर्धन कले एवं ये प्रकल्प तैयारी करिवार मध्य अनेक योगदान रही सेथिपई मध्य मु धन्यवाद दूछि। एवं शेषरे आपणकर जे आमर मंत्री महोदय ये मीटिंग को सफल करिवारे प्रकल्प फाइनल स्टेज को आसिकी लोकार्पण हेबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण कले मोर सान भाई धर्मेंद्र प्रधान को मध्य मु आंतरिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। विभाग रो सचिव मिस्टर त्रिपाठी बी अशोक एठिकार परिचालना समिति अध्यक्ष एवं मंच रे बसुवा अन्य अतिथि समस्त को धन्यवाद दूछि। शेषरे जनसाधारण जो मानकर उपस्थिति पाई बोलिक सभा सफल हैला गौरवमय हैला एवं समस्त को उत्साह प्रदान कला समस्त जनसाधारण को धन्यवाद दूछि। मोर मीडिया गणमाध्यम रो प्रतिनिधि भाई मान को मध्य मु धन्यवाद दूछि जे से माने सीधा प्रसारण कले एवं एठिकार प्रोसीडिंग्स को जनसाधारण को जनइले तांको धन्यवाद दूछि। पुलिस प्रशासन एठिकार जिला प्रशासन समेत एठी टेंट हाउस एवं अन्यान्य आनुषांगिक व्यवस्था करिबारे जो माने सहयोग कले एवं ए सभा को सफल कले समस्त को मु धन्यवाद देकरी मोर धन्यवाद प्रस्ताव एठी समाप्त करुछि। वंदे मातरम भारत माता की जय। माननीय मंत्री महोदय आपन को मध्य धन्यवाद। मंचासन समस्त अतिथि पाई आउ थरे जोरदार करताली। माननीय प्रधानमंत्री आम गहन रे उपस्थित रही दीर्घ 1 घंटार ऊर्ध्व समय आम भितर अतिवाहित कले आमको दुई पद शुणेले समस्त को आमे मंचासन समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। आपण मानक मध्य धन्यवाद अर्पण करुचु। आपण माने धैर्यर सहित एते समय उपस्थित रही आमको उत्साहित कले समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल तरफ
Thank you to the dignitaries once again, and thank you all for joining us here and making this occasion truly special and unforgettable. Namaskar. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ।